Hello students, welcome in social science class. I'm your teacher Mohabbat Nawaz. The topic is the Russian Revolution. In one of the least industrialized of European states, the situation was reversed. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917, the fall of monarchy in February 1917, and the events of October are normally called the Russian Revolution. क्या होता है कि लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट थी ये यूरोप में, रशिया, और यहाँ पे सोशलिस्ट जो थे उन्होंने हुकूमत पे कब्ज़ा कर लिया था। उन्होंने हुकूमत अपनी बना ली थी। कब? अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 में जो हुआ उस दौरान जो मोनार्की थी, किंग सिस्टम गवर्नमेंट थी, उसको फरवरी 1917 में गिरा दिया गया था और इन्हीं वाक़यात को रशियन रेवोल्यूशन कहा गया है। हाउ डिड दिस कम अबाउट? ये हुआ कैसे? What were the social and political conditions in Russia when the revolution occurred? सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी जिनकी वजह से ये जब रशिया में ये हुआ? To answer these questions, let's look at the Russia a few years before the revolution. हम देखते हैं revolution से कुछ साल पहले का रशिया। The Russian Empire in 1914. Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included currently day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine, and Belarus. It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia, Azerbaijan. The majority religion was Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholics, Protestants, Muslims, and Buddhists. तो 1914 में tsar निकोलस जो सेकंड थे वो रशिया को रूल कर रहे थे, रशियन एम्पायर को। इसमें टेरिटरी जो इलाका था मॉस्को के आसपास की इलाके भी थी, मॉस्को के साथ में रशियन एम्पायर में जो चीज़ जो थे, बहुत सारे मुल्क जो आज अलग मुल्क हैं, ये फिनलैंड, लेटिवा, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, ये सारे अलग कंट्रीज़ हैं। और सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, कुछ जॉर्जिया, आर्मेनिया है, अज़रबैजान, ये कंट्रीज़ जो भी ये भी रशिया का हिस्सा थी उस वक्त। द मेजॉरिटी रिलीजन जो था इसमें, मेजॉरिटी रिलीजन मज़हब, किस मज़हब के मानने वाले लोग ज़्यादा थे, वो थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के, और जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से आया था, और उसके अलावा कैथोलिक्स भी थे वहाँ पे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुसलमान भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। Economy and society. At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russia's people were agriculturalists. About 85% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture. This proportion was higher than in most European countries. For instance, in France and Germany, the proportion was between 40% and 50%. In the empire, cultivators produced for the markets as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grain. तो इकानमी और सोसाइटी की बात करें तो 20th सेंचुरी जो थी, 20वीं सदी, उसके
शुरू में ही वास्ट मेजॉरिटी रशिया के लोग जो थे एग्रीकल्चरिस्ट थे, और 85% रशिया के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर से ही कमाते थे। और ये जो हिस्सा था पॉपुलेशन का, ये पूरे यूरोप में किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा था एग्रीकल्चर पे रोज़गार कमाने वाले लोगों का। जैसे हम देख लें, फ्रांस जर्मनी में प्रोपोर्शन जो था ये 40% के आसपास था, और वहाँ 85%, डिफरेंस खुद ही दिखता है। 50% तो था जैसे जर्मनी में, फ्रांस में 40%। और एम्पायर में क्या था, कल्टीवेटर जो थे मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे, अपनी ज़रूरत के लिए भी प्रोड्यूस करते थे। और रशिया जो था दुनिया में यहाँ पे उस वक्त मेजर एक्सपोर्टर था, ये गला एक्सपोर्ट करने के लिए। Industry was found in pockets, prominent industrialist areas where St. Sternberg and Moscow craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshops. Many factories were set up in 1890s when Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased. Coal production doubled and iron and steel output quadrupled by the 1900s. In some areas, factory workers and craftsmen were almost equal in number. तो इंडस्ट्री जो थी वो बड़ी प्रोमिनेंट हो चुकी थी। मॉस्को और स्टर्नबर्ग सिटीज़ जो थी, यहाँ ये बड़े इंडस्ट्रियल एरिया थे। क्राफ्टमैन जो थे वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का हिस्सा ले जाते थे, और बड़ी छोटी मोटे वर्कशॉपों के साथ साथ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी थीं। और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो थीं ये 1980 की दहाई 1890 की दहाई में ही सेटअप कर दी गई थी। और रशिया रेलवे का जब नेटवर्क एक्सटेंड हुआ तो उस वक्त जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी इंक्रीज़ किया गया, कोल प्रोडक्शन को डबल कर दिया गया, स्टील और आयरन का आउटपुट बहुत ज़्यादा आने लगा। और 1900 ईस्वी तक क्या होता है कि यहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स और जो क्राफ्टमैन थे उनका नंबर लगभग बराबर हो गया था। मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। गवर्नमेंट supervised large factories to ensure minimum wages and limited hours of work, but factory inspectors could not prevent rules being broken. In craft units and small workshops, the working day was sometimes 15 hours compared with 10 and 12 hours. In factories, accommodation varied from rooms to डॉर्मेटरीज। तो जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, इंडस्ट्रियलिस्ट की थी। गवर्नमेंट उनको सुपरवाइज करती थी। लार्ज फैक्ट्रीज़ जो थी उनके ऊपर में वो उनको सुपरवाइज कर रही थी। मिनिमम वेजेस और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क की बारे के लिए। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो थे वो रूल्स को तोड़ते थे, वो अपने का हिसाब से काम चलाते थे गवर्नमेंट की सुपरविज़न से बाहर आके। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स द वर्किंग डे वाज समटाइम्स 15 आवर्स। छोटे वर्कशॉप जो थे क्राफ्टिंग जो था उसमें कभी कभी 15 घंटे का काम भी होता था, और कभी 10 घंटे का, कभी 12 घंटे का फैक्ट्रीज में। और एकोमोडेशन क्या, कमरे में एक कमरा या उतनी कम एकोमोडेशन होती थी, या छोटे मोटे उतना ज़्यादा उसको एकोमोडेशन भी नहीं होती थी। वर्कर्स वेयर ए डिवाइडेड सोशल ग्रुप। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे केम। Others had settled in cities permanently. Workers were divided by skill. A metal worker of St. Sternberg recalled, metal workers considered themselves
aristocrats among other workers. Their occupation demanded more training and skill. Women made up 31% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men, between half and three quarters of a man's wage. Divisions among workers showed themselves in dress and manner too. Some workers formed associations to help members in times of unemployment and financial hardship. तो वर्कर्स जो थे वो उनकी भी मुख्तलिफ कैटेगरीज थी। कुछ ने अपने विलेजेस के साथ बड़ा अच्छा लिंक रखा हुआ था, कुछ परमानेंटली आके शहर में ही बस चुके थे, शहरों में बस चुके थे, और स्किल के हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता था। मेटल वर्कर्स अपने आप को वर्कर्स में सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानते थे। ट्रेनिंग की बात भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त होती थी। और वुमेन वर्कर्स जो थी वो भी काम कर रही थी, 30%, लगभग 31%, लेकिन उनकी वेजेस में और उनके काम काज में उनके साथ इंसाफ नहीं होता था, और उनके दिखने में अपरेंटली भी उनको मर्दों से कम, तो उनकी तनख्वाहें जो थी एक हाफ हाफ या एक तिहाई से कम भी मर्दों के मुकाबले में मिलती थी। डिस्पाइट डिविजन्स, workers did continue to strike, work, stop work when they disagreed with employers about dismissals or work conditions. These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 1897 and in the metal industry during 1902। डिविजन्स भी थी वर्कर्स के बीच में, लेकिन डिविजन्स के साथ साथ वर्कर्स जो थे वो अपना कामकाज ठीक ठाक से भी चला रहे थे। उन्होंने हड़तालें भी की अपने जब जब उनको ज़रूरत पड़ी, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी उसमें उसके वर्कर्स ने ज़्यादा ये हड़तालें की। और मेटल इंडस्ट्रीज़ में 1902 ईस्वी में, in the countrysides, peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown, and the Orthodox Church out owned large properties. Like workers, peasants too were divided. They were also deeply religious, but except in few cases, they had no respect for the nobility. Nobles got their power and position through their services to the sort, not through local popularity. This was unlike France, where during the French Revolution in Brittany, peasants respected nobles and fought for them. In Russia, peasants wanted the land of the nobles to be given to them. Frequently, they refused to pay rent and even murdered landlords. In 1902, this occurred on a large scale in South Russia, and in 1905 such incidents took place all over Russia. तो फिर क्या होता है कि जो जो पीजेंट्स थे वो काम करते थे, कल्टीवेशन करते थे कंट्री साइड में पूरे मुल्क में, लेकिन उसका उसमें जो प्रॉपर्टी थी, लैंड थी या बाकी प्रॉपर्टीज़ थी, उसको ज़्यादातर जो क्राउन, जो बादशाह था, उन्होंने अपने कब्ज़े में रखा हुआ था। कुछ लोगों के कब्ज़े में था, ऑर्थोडॉक्स चर्च के कब्ज़े में थी प्रॉपर्टी ज़्यादा। वर्कर्स जो थे वो उनको खाली काम ही करना होता था, उनको जो प्रोडक्शन है कम मिलता था। पीजेंट्स भी डिवाइड हो गए थे, और इसलिए फ्रांस के मुकाबले में जैसे उन्होंने नोबल्स को हेल्प की थी, यहाँ पे पीजेंट्स जो थे ये जानी दुश्मन बन चुके थे किसके, प्रॉपर्टी बनाने वालों के, और इन्होंने उनके कत्ल तक भी किए। और ये कत्ल आम का मामला, जो प्रॉपर्टी वालों की कत्ल करने हैं, ज़मीन छीननी है, उनकी ज़मीन उनको दी जाए। पीजेंट्स चाहते थे कि जो ज़मीन पे वो काम करते हैं वो उनकी होनी चाहिए, ना कि लैंडलॉर्ड्स की, ना कि बादशाह की, ना कि चर्च वालों की। तो 1902 ईस्वी में ये बड़े पैमाने पर हुए, कत्लेआम हुए। और
ये इंसिडेंट्स जो थे ये 1905 तक होते रहे। और फिर पीजेंट्स जो थे वो भी, रशियन पीजेंट्स डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन पीजेंट्स, है ना। तो रशियन पीजेंट्स जो थे वो यूरोपियन पीजेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट थे। दूसरे एक मामले में, वो क्या मामला था, दे पूल्ड द लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड दे and their commune divided it according to needs of individual families. So this much is suffice for the day. Thank you.